Welcome to Import Export Federation, India's #1 platform to start your export and import business. Today we will talk about how to start your import business, and for that we have an expert who had actually done this business, the actual practitioner, Mr. Pankaj Chhabra from Delhi, who has a company called Target Marketing Company in China. He has stayed in China, and today he will share all these experiences with us. He's partner of Import Export Federation, and we are offering lot of import services to all our people and entrepreneurs in India. So today we will learn from him how we can start import business. So Pankaj ji, welcome to India. Welcome to Import Export Federation. Yeah. So please tell us about your background. I mean, from where you are, how you started this business. When did you started this? Yeah, I am Pankaj Chhabra from Delhi. I started this business from 2007 when I had been to first time China to buy some toys. At that time I was doing toys business. Okay. So I belongs to a business family. So my father was businessman and he has a factory of wires and cables. Okay. But right now, since 2007, we are regular importing toys, gifts, stationery, furniture, lightings, many products from China for our customers on their demands. The main thing is we are a service provider. If anybody wants to import from China, their people contact us. They want to go China, we arrange their visa, their tickets, and let them know how to go there, how to buy, which city is suitable for their business. If suppose anybody comes India from UK or Canada, he asks you he want to buy sweaters, so you would suggest him you should go Ludhiana or Punjab. Yes. Same thing is in China. China is very big, and it based many products, whatever suitable to your business. So you can contact us with Import Export Federation in Pune, Mumbai and Delhi. We have 3 offices. If you want to buy any product, I would say any product, from any mechanical product, any hospitality products, any hospital products, you can go there easily. And China is very familiar country, for foreigners, very safe country. So no doubt, if you want to start, it's the right place for you. Why did you choose this import, as a business? Up to 2007, I was doing the wholesale business of toys. At the same, when I saw I should have a opportunity to go over there and I can buy toys from there, and my cost can be less. Reduced. As because I am buying from here from importers, and their profits are 20 to 30 to 40%. So I would say I should go there and think how can I, how big there are the mass production is over there, and how also I can start from there. Right. So yeah. Great. तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे पहली बार में ही मैंने 5 लाख रुपए का अपना स्टफ खरीदा, टॉयज खरीदे. अच्छा. जो कि टॉयज की एक मेन सिटी थी शंटाऊ, दैट इज ओनली फेमस फॉर टॉयज ओनली. Okay. So after that, slowly I started to convince the peoples, if you want to go China with me, you can go. I can arrange your traveling, and I can take you with there. I can provide you custom services, custom clearance services. I can handle your logistics. Okay. So many people got come with me, and same. Right. Yeah. तो पहले बेसिकली आप टॉयज का इंडिया में बिजनेस करते थे, आप इंपोर्टर से बाय करते थे, इंपोर्टर से खरीदते थे, वॉल्यूम बढ़ा. हाँ, तो हमने वहाँ पर जाना शुरू किया. हमने देखा कि जब इंपोर्टर यहाँ पे हमसे 20, 30, 40% प्रॉफिट ले रहा है, तो वो चीज हमें थोड़ी समझ नहीं आई. तो हम थोड़े उस समय छोटे व्यापारी थे, तो हमने सोचा कि और प्रोडक्ट्स बढ़ाए जाएं अपने, वहाँ जाके देखा जाए क्या क्या चीजें हैं. तो फिर वहां जाने के बाद तो हमारा विजन और बड़ा हो गया, एक्सप्लोर हो गया. हमने अपने आप को काफी एक्सप्लोर किया, और प्रोडक्ट्स में एक्सप्लोर किया. नाउअडेज अभी हम जेंट्स नेक टाइज का फैब्रिक भी इंपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा. जिसके कि ये सैंपल्स हैं यहाँ पे हमारे पास. आप देख सकते हो. टाइज का फैब्रिक है. टाइज का फैब्रिक है. राइट.
ओके। तो और इसमें डिफरेंट, चाइना से बन के ये आता है, चाइना से ही बन के आता है, इंडिया में नहीं रेडी हो पा रहा है ये फैब्रिक। ओके। तो ये पिछले 20 सालों से चाइना से ही आ रहा है और इसको रेगुलरली 10 साल से हम भी कर रहे हैं ये काम। ओके, तो कौन है सर आपके यहाँ पे कस्टमर्स बड़े बड़े? दिल्ली में जितने भी टाई के मैन्युफैक्चरर्स हैं, बॉम्बे में मैन्युफैक्चरर्स हैं टाई के, वे हमारे को ऑर्डर देते हैं। दे गिव अस ऑर्डर, दे सिलेक्ट डिजाइंस फ्रॉम आवर कैटलॉग्स Okay. एंड आफ्टर दे कंफर्म देयर ऑर्डर दे गिव अस डिपॉजिट Okay. and then we start their production in China. Okay. And after that, when it comes to Mumbai or it comes to Delhi, we hand over their shipments and They do then the the job is business. finished. Yeah, Great. like this. तो सर इसका क्या कॉस्टिंग होता है चाइना में इस फैब्रिक का, रॉ मटेरियल का मतलब? Raw material का ये वहाँ पर जी 17 RMB. 17 RMB. Yeah, RMB is, means Chinese currency. Right. And if you will calculate according to today's price, today rate of transfer rate, it could be 190, 195 approximately rupees per meter. Per meter. Yes. Okay. Yes. Yes. And then how do you how much it gets sold in India for? We just take big orders from our clients like 4,000 meter, 5,000 meter, 10,000 meters like this. And after that, उनको यहाँ जब दिल्ली में माल आ जाता है, उनका सामान आ जाता है बाय शिप, तो फिर हम उनको डोर डिलीवरी देते हैं और उसके बाद जो अपना अकाउंट होता है वो उनसे क्लियर कर लेते हैं, उसमें जो भी लेन देन रहता है हमारा। ग्रेट जी। तो कैसा प्रॉफिट होता है सर इस इंपोर्ट बिजनेस में? आई मीन एनी अप्रोक्सीमेट फिगर्स सो दैट अभी लोगों को क्या है कि इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस शुरू करना है, पैसे भी लगाने हैं, बट कितना मुनाफा होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलेंगे? मतलब अब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा, बट देखिए हर बिजनेस का अपना अपना प्रॉफिट है। अब आप किस बिजनेस की जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट में अपनी मास्टरी करना चाहते हैं। और यदि आप बिगिनर हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी कैन सजेस्ट यू ओके विद कस्टमर बायोडाटा। ओके या कि अगर आप कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो इस फेडरेशन के थ्रू एज ए पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन वी कैन सजेस्ट यू नंबर ऑफ बिजनेसेस ओके you can start. Great. And we can help you a lot at any platform. Okay. From Right. buying from China, Right. logistics, custom clearance, and where is the customer, how to sell them, but where is the market. राइट। It's up to बेसिकली you. अब किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस का, लेट्स से ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिजनेस है इंपोर्ट का, तो एक भाग हो गया कि भाई चाइना में सोर्सिंग करनी है, तो वहाँ पे जेन्युइन कॉन्टैक्ट चाहिए, जेन्युइन कंपनी चाहिए। काफी लोग हमारे पास आते हैं फेडरेशन के पास कि लेके सर फ्रॉड हो गया, हमने एडवांस डाल दिया लेकिन पैसा मटेरियल नहीं आया, या कुछ गलत डॉक्यूमेंट भेज दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ये सारे लोगों ऐसा नहीं है। अब देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इंडिया में भी गलत लोग हैं तो चाइना में भी हैं। ये सारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। Okay. हाँ, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि हमारा वहां पे स्टाफ है, Okay. हमारा वहां पे ऑफिस है। आप हमारे को जो भी प्रोडक्ट देंगे, जितनी भी आप क्वांटिटी बताएंगे, एग्जैक्ट क्वांटिटी आएगी। Okay. जैसी क्वालिटी आपके साथ बिफोर एग्रीमेंट आपके साथ बताई जाएगी, आपको सैंपल अप्रूव कराया जाएगा, या आप अपना कोई सैंपल देते हैं कि हमें एज इट इज चीज मंगानी है, Right. तो वही होगी। मैं 13 साल से कम ये काम कर रहा हूँ, मेरे साथ आज तक कोई धोखा नहीं जी। है। तो आप सर 13 साल से चाइना में रह रहे और यहाँ पे सारा बिजनेस कर रहे, तो ओवरऑल व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ चाइना? आई मीन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड में अभी हम लोग देख रहे कि इंडिया एंड चाइना कंपीटिंग विद ईच अदर, तो आपको क्या लगता है कि चाइना में क्या है कि चाइना इतना आगे निकल गया? देखिए वहां पे सबसे बड़ी एक तो बात है कि वहां पे लेबर बहुत सस्ती है। ओके। ड्यू टू पॉपुलेशन इंडिया से या लेबर सस्ती है वहां पर। ठीक है, उसके बाद वहां पर सारा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के बावजूद वहां पर गवर्नमेंट हेल्पिंग है फॉर बिजनेस के लिहाज से, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्टिव है। इंडिया के अंदर अभी वो वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि मैं पेट्रियोटिक नहीं हूं या मुझे अपने देश से प्यार नहीं है, मैं भी अपने देश की उतनी तरक्की देखना चाहता हूं, लेकिन वहां पर पब्लिक बहुत मेहनती है। रात को 2 बजे भी आप उनको को फैक्ट्री खोलनी है तो देयर पीपल आर रेडी टू शो यू देयर सैंपल्स और व्हाटएवर। बट इंडिया में अभी कहीं कुछ ना कुछ कमी है वहां पे हमें उस लेवल तक पहुंचने की। फिर उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, उनकी एक आइटम 50-50 करोड़ पीस इकट्ठा बनता है। तो हम लेबर के हिसाब से, क्योंकि हमारे लेबर कानून इतने पेचीदे हैं
कि हम उनको बीट नहीं कर सकते। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, लाइटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। अब हमने चाइना के अंदर देखा है कि यदि आप एक शहर से दूसरे शहर आप कंटेनर मंगाते हैं तो वहां की सड़कों को उन्होंने सबसे पहले दुरुस्त किया, भागते हुए कंटेनर आते हैं। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी ग्राउंड लेवल पे समस्याएं हैं, अगर उनको सुधारा जाए तो कुछ सोचा जा सकता है, कुछ समझा जा सकता है। तो आप इतने दिन चाइना में रहे तो आपको कम्युनिकेशन करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया चाइनीज के साथ या बाकी दुनिया के साथ? देखिए, जब वहां पे रहते हैं तो अब ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपने क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। ठीक है, तो जब आप बैठे हैं उनके साथ, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अब आप उनके साथ बैठे हो, आप यदि उनसे पूछ रहे हो कि ये चम्मच इसको क्या बोलते हैं, तो यदि उसने बता दिया तो आपने रोज 10 वर्ड भी पूछे और 5 भी आपको याद रह गए, तो अपने आप ही आपको काफी चीजें अपने आप ये डिपेंड ऑन या राइट। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो अभी आप या हम फेडरेशन जो काम करना चाहते हैं या अभी जो काम कर रहे हैं कि भाई लोगों को इंपोर्ट करना है तो उनको इंपोर्ट सर्विस फैसिलिटेट करते हैं, या तो हम लोग कुछ बिजनेस भी लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोग हमारे पास आते हैं फेडरेशन के पास कि सर कौन सा प्रोडक्ट मैं ले लूं, कौन सा मैं क्या करूं, मुझे डालना है तो आप ही बताइए, आप ही सजेस्ट कीजिए। तो ऐसा लोगों को लगता है, आई मीन दे आर नॉट एबल टू थिंक ऑन देयर ओन समटाइम्स, सो दे नीड सम सपोर्ट टू स्टार्ट विद एटलीस्ट। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स में ज्यादा पोटेंशियल आपको इंडिया में दिख रहा है आज के दिन में? जी, मेरे हिसाब से देखें तो टॉयज का बिजनेस, जब तक दुनिया में बच्चे पैदा होते रहेंगे, खिलौने बिकते रहेंगे। मोबाइल एसेसरी हमारी डेली की नेसेसिटी है। आज हमारा प्लग टूट गया, वायर कहीं छूट गई, वायर टूट गई, वी नीड एवरी डे दिस काइंड ऑफ थिंग्स। उसके अलावा दिस काइंड ऑफ मोबाइल एसेसरी यू कैन सी, ये चाइना ये सब चाइना से ही आ रही हैं। हाँ जी, तो ये सारे हम लोग जो दुकानों में बिल्कुल यहाँ पे हम लोग 500, 600, 1000 रुपए में खरीदते होंगे, तो शायद वहाँ पे ये मैक्सिमम 20 रुपए, 30 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिपेंड ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी ब्रांडेड नहीं है, अगर आप वहाँ पे भी अच्छी कंपनी के पास, फैक्ट्री के पास जाएंगे तो ये यहाँ की धारणा हमारी गलत है कि चाइना गलत बनाता है, सस्ता बनाता है। आप ये भी सोचिए कि चाइना का माल यूरोप भी जा रहा है, यूएसए भी जा रहा है, लंदन भी जा रहा है, कनाडा भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है। तो जैसे आप उनको मापदंड समझाएंगे अपने, जैसा आपका बजट होगा वो आपको उसी रेंज के अंदर चीज बना के दे देंगे। इस चीज में हम चाइना को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो सस्ती बनाता है, क्योंकि इंडियन पीपल को सस्ती चीजें चाहिए, क्योंकि वो फास्ट सेल चाहते हैं, तो इसीलिए वो चाइना को ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो आप बोल रहे कि ऐसे जो बहुत ही और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, शूज हैं, शूज एसेसरी, गारमेंट्स, गारमेंट एसेसरी, जिसका देखिए जो रिलेटेड बिजनेस है या तो वो वही करना चाहेगा, या यदि कोई कुछ नया देख रहा है तो जब तक वो व्यक्ति वहां खुद जाके अपने हिसाब से वहां पे विश्लेषण नहीं करेगा, सोर्सिंग नहीं करेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, मैं क्या बेच सकता हूं, और पहले जाने से पहले यहां भी होमवर्क करके जाए कि ये चीज यहां पे कितने की बिक रही है और वहां से कितने की आ रही है। फिर उसके ऊपर सारे कस्टम टैक्सेस वगैरह, लॉजिस्टिक्स, अपना रहने का खर्चा, हर चीज को उसमें अपनी कॉस्ट में ऐड करे और फिर आकर यहां पर उसका रेट निकाले कि हाँ भाई अगर ये चीज यहाँ 15 की बिक रही है और मुझे 10 की आ रही है तो मैं 14 की बेच के मार्केट अपनी तरफ ग्रैब कर सकता हूँ। राइट, तो ये कौन से प्रोडक्ट है सर? और जो ये टैप का फॉकेट है। जब हमारी टैप खराब हो जाती है तो ये फॉकेट के अंदर ये लगता है, तो ये हार्डवेयर की आइटम है जस्ट। ओके, हाँ, ये भी सब वहीं से ही आ रहा है। और उसके अलावा ये डिस्पोजेबल गुड्स हैं जो हम KFC, मैकडोनल्ड्स वगैरह में यूज करते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ये भी चाइना से, अभी इंडिया में ऑलरेडी बिक रहा है, और मास क्वांटिटी में बिक रहा है। ओके, यू आर इंपोर्टिंग चाइना, ग्रेट। तो आप देखेंगे तो काफी सारे प्रोडक्ट्स है, अलग अलग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल है, मोबाइल एक्सेसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग पार्ट्स है, डिस्पोजेबल गुड्स हैं, मशीनरीज हैं। आपको कोई भी मशीनरी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी आज की डेट में, चाहे शूज मेकिंग की मशीन्स हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, नेल आर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट एसेसरी है, फर्नीचर है, लाइटिंग्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एवरी सिटी इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर देयर ओन आइटम। आप जाएं वहां पे एक्सप्लोर करें। 2 मेन प्रोविंस हैं, ग्वांगडोंग और जिजियांग। अच्छी तरह उसको घूमें। वहां पे एक एक फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि आपको पूरा पूरा एक दिन लग जाएगा एक फैक्ट्री घूमने के अंदर। तो बहुत बड़ा उनका वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमसे बहुत बड़ा है और हम कम्पीट नहीं कर सकते इतनी बड़ी फैक्ट्री। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं फिर? अभी जो फेडरेशन के पास जो लोग आते हैं जिनको इंपोर्ट करना है, अगर उनका टिकट साइज बड़ा है, लेट्स से कि उनको बिजनेस से सेटअप करना है, ऐसे काफी लोग बड़े आते हैं कि भाई उनके पास इन्वेस्टमेंट है, 25-50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है सर, और अभी आप सजेस्ट कीजिए बिजनेस या कोई
कोई प्रोडक्ट लाना है तो उनके लिए फिर किस उनके type का लिए काम- आने वाला टाइम देखिए जी, मैं आपको बताऊं, ई व्हीकल्स का है। आप उस बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चाहिए। उसके साथ बैटरीज का कनेक्शन आ जाता है, लिथियम बैटरी का प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो यहाँ पे। अगर आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी कोई बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल एरिया है आपके पास, तो चाइनीज कंपनीज खुद यहाँ पर अपने लिए एक अच्छे पार्टनर्स की तलाश में हैं कि जिनके साथ मिलकर वो जॉइंट वेंचर में कर सके। Okay. ई व्हीकल्स है, अगर आप बहुत बड़े मात्र स्केल के ऊपर काम करना चाहते हो तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर आप कर सकते हैं। यू कैन डू वेरी बिग थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। राइट। तो अभी क्या सिचुएशन करंटली चाइना की? अभी लेट्स से कि लास्ट ईयर तो काफी सारी हलचल मची मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड अदर थिंग्स एंड पीपल आर गोइंग अगेंस्ट चाइना इन जनरल, दैट्स व्हाट इज एन एनवायरनमेंट। दो रिसेंटली WHO सेड दैट वो चाइना का कुछ रोल नहीं है उसमें, जो भी है व्हाटएवर। तो आपको क्या लगता है चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया में, और अगर कोई इंडिया में लाके उसको री एक्सपोर्ट भी करना चाहता है, क्योंकि काफी सारा रॉ मटेरियल तो चाइना से आ रहा है इंडिया का, बिल्कुल। तो फिर चाइना के ऊपर तो डिपेंडेंस इंडिया की अभी है, बिल्कुल धीरे धीरे कम हो रहा है। बट तो आपको क्या लगता है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू? कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, राइट, ओके। बट डिपेंडेंसी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनरीज हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनका रॉ मटेरियल वहां से आ रहा है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल्स हैं, फर्नीचर के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हैं, वो मेटल्स है, एलॉय है, बहुत सारी चीजें हैं, एनामेल्ड वायर है पंखे के लिए, ठीक है। उसके अलावा कूलर पंप के पार्ट्स हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से आ रही हैं, जो अगर आनी बंद हो जाए तो यहाँ काफी सारा बहुत नुकसान इंडिया का भी होगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। ओके, तो बेसिकली म्यूचुअल बिजनेस है और Mutual, वो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग इंपोर्ट की बात करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सपोर्ट? इंडिया के भी प्रोडक्ट के लिए चाइना बड़ा मार्केट है, दैट्स व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। रिसेंटली कुछ बड़े बड़े डील्स राइस के और इसके सोयाबीन के साइन अप हुए, तो आपको क्या लगता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपोर्ट का कितना पोटेंशियल है? अमेरिका ने बैन कर दिया कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू सोयाबीन, सो इट्स अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, फॉर इंडियंस, कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इफ यू हैव एनी सोर्सेज इन इंडिया, सो वी कैन प्रोवाइड यू बायर्स ओवर देयर इन चाइना, सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस। Yeah, definitely. I mean, Federation has locally exporters who are working in soybean field, soybean, processed soybean, DOC. Yeah, of course. We will get you those details and we will connect you for those customers. Of Right. ओके, तो जैसे कि अभी नए लोग ढूंढ रहे हैं जो बिजनेस, जिनको ऑलरेडी कुछ लोगों का ऑलरेडी बिजनेस है, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेट्स से कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ऐसे कुछ लोग हमारे पास आए थे कि उनको हेल्थ केयर के कुछ इक्विपमेंट चाहिए या एग्रीकल्चर के कुछ इक्विपमेंट चाहिए इंपोर्ट करके, तो उनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? क्या व्हाट शुड बी द? देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम का कोई दायरा नहीं है, ठीक है। इट्स डिपेंड यू। आप यदि 5 लाख रुपए से भी कोई अपना व्यवसाय, बिजनेस, इफ यू वांट टू स्टार्ट, यू कैन गो देयर, यू कैन सोर्स द प्रोडक्ट्स एंड यू कैन ब्रिंग इन LCL शिपमेंट्स, यू नो। एंड उसके बाद पहले आप जाने से पहले यहाँ पे अच्छी तरह सर्वे कीजिए कि आपकी पकड़ किस पे है, आप यूथ आइकॉन है तो आप क्या प्रोडक्ट्स, आपका सर्कल है, क्या आइटम हम बेच सकते हैं, आपके आसपास का माहौल क्या है। तो उसके बाद आप बहुत सारी चीजें हैं, कुछ 5-10 लाख रुपए से आप टॉयज का बिजनेस कर सकते हो, आप गारमेंट्स ला सकते हो, आप वहां से स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बच्चों के ला सकते हो, फुटवियर ला सकते हो, लेडीज बैग्स ला सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी ये जो प्रोडक्ट्स आपने बात की, जैसे टॉयज है, टेक्सटाइल्स है, इसमें तो इंडिया में भी काफी अच्छा प्रोडक्शन है, टॉयज में नहीं बट लेकिन टेक्सटाइल में है। तो मैं टेक्सटाइल की बात नहीं किया, मैंने कहा गारमेंट्स की, रेडी गारमेंट्स, जो गर्ल्स की टी शर्ट्स आती हैं, सर्दियों के कपड़े आते हैं, ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वहां से ऑलरेडी आ रहे हैं। ओके, तो जो इंडिया में नहीं बनते, जो इंडिया में नहीं बनते या उस फिनिशिंग लेवल तक नहीं बनते, और वहां पर फिर प्रोडक्शन फास्ट है। यू सी कि आपने अगर ऑर्डर दिया 10,000 पीस का, तो वो एक हफ्ते और इवन एक दिन में भी देने का मादा रखते हैं, जो कि यहाँ पे वो चीज मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल। तो देखेंगे अगर हम लोग, तो अभी हम लोग एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन काफी काम कर रहा है, तो वी हैव सीन दैट आवर एसोसिएट इंडिया इज, आई मीन, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन कॉटन। तो वो रॉ कॉटन भी एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश और चाइना को, और वहां से कपड़े हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा साइकिल चल रहा है, दिख रहा है हमें, मतलब कि ऐसा हो रहा है, दैट्स एन इकोनॉमी, दैट्स हाउ इट इज फ्लोइंग, यू नो, ठीक है। तो इसके बाद
जो भी लोग उनका प्रोडक्ट यहाँ पे लाना चाहते हैं इंडिया में या कुछ खरीदना चाहते हैं चाइना से लेट से, तो वो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के पास आते, तो उनको जो हेल्प करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या बिजनेस मॉडल उनको उनका रहेगा? मतलब उनको फिर पहले डिपॉजिट लेके भाई ऑर्डर बुक करना पड़ेगा, या तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे वो वहां पर सपोज कीजिए कि शू मार्केट में जाते हैं या किसी बड़ी शूज की फैक्ट्री में जाते हैं, वो वहां पे अपना सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद कंपनी के साथ उनकी टर्म सेट होती हैं। अगर वो पूरा कंटेनर 40 हाई क्यूब का लेना चाहते हैं या 20 फीट का लेना चाहते हैं, दे डिसाइड देयर ऑर्डर कि वो कितना ऑर्डर करना चाहते हैं। उसके बाद उसको उस कंपनी से उनकी 30% की टर्म्स रहती हैं कि 30% एडवांस और 70 ऑन डिलीवरी। ठीक है, 70 ऑन डिलीवरी। इन बिटवीन जब यहाँ पर उनका सामान तैयार हो जाता है तो चाइनीज कंपनीज उनका सामान जो है वो लोड कर देते हैं कंटेनर वगैरह, और उसके बाद वो बीएल उनको तब यहाँ पर रिलीज करते हैं जब उनको उनका फर्दर अमाउंट 70% मिल जाता है। आफ्टर 15 to 20 days it takes, it comes when Nhava Sheva or Bhiwandi, whatever the port they have selected, the client has selected. तो वही लोगों को वही डर रहता है कि वहां पे क्या होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि वो आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फेडरेशन इंडिया के साथ, हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उनको पूरी इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि उनकी किसी भी 1 रुपए का कोई नुकसान नहीं होगा। और इवन अगर वो वहां पे नहीं खरीदना चाहते तो हमारे साथ हम कुछ फ्यूचर में ग्रुप्स वगैरह अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, 10, 20, 15 लोगों को साथ लेके जाने का। दे पीपल कैन गो विद अस, दे कैन एक्सप्लोर व्हाट बिजनेस दे वांट टू डू, और उसके बाद वो सिलेक्ट करें। आने के बाद भी वो लोग अपने ऑर्डर फाइनलाइज कर सकते हैं, उनकी कैटलॉग्स ले सकते हैं। अगर 2-4 बिजनेस को वो देखते हैं, उसमें से जो सा उनको समझ आए कि वो किस किस मार्केट में कहां पर उसका मतलब है, वहां पे कहां पे उसका सेल कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी, सो वी कैन कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका जो ये फेडरेशन है, आप एक ऐसा ग्रुप भी कर सकते हो 15 से 20 हर महीने या 2 महीने के गैप के ऊपर, कि यहाँ से लोगों को लेके जाने का। क्योंकि जब तक वो वहां जाएंगे नहीं, वो वहां देख जाके उनको लगेगा कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं, और उनको वैसा ही फीलिंग होगा कि हम यूरोप जैसी किसी कंट्री में आ गए हैं और हम सेफ हैं, यहाँ पे हमारा पैसा सेफ है, द पीपल आर वेरी गुड। ठीक है, तो उसके बाद वो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। हमारे थ्रू हमारी जो भी उनको सेवा या जो भी हमारे से मदद चाहिए हो, वी आर ऑलवेज हियर, नो प्रॉब्लम। तो अभी अगर किसी को खुद जाके चाइना विजिट करके जैसे 1 हफ्ता रह के आना है, तो उसके लिए कितना एक्सपेंसेस? मैक्सिमम 50,000 रुपीज बस। या ये भी मैं थोड़ा ज्यादा ही कह रहा हूँ। बाकी अब देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब अपने आपको किस तरीके के खर्चों के अंदर आप वहां पे ढालते हो। वहां पर आपको 200 यानी कि 2,000 रुपए का भी रूम मिल जाता है, और वहां पे आपको 1,000 रुपीज का भी रूम मिल जाता है, और वहां पे भी सब कुछ चीज है। शंग्रीला भी है, हॉलीडे इन भी है, सब होटल चेन वहां पे भी है। इट्स अप टू यू कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो। अब दिल्ली से जो हांगकांग की टिकट जा रही है, लास्ट ईयर जब मैं ट्रैवल किया 2 बार, तो 24,000 रुपए की टिकट थी सिर्फ आने जाने की। तो मैं 4 महीने रहा था मैं वहां। ठीक है, रिटर्न आना जाना, और उसके बाद वहां से जो थोड़ा बहुत 200-300 RMB एक्सपेंसेस आपके चाइना से हांगकांग से चाइना जाने के। अब उसके ऊपर वहां पर इंडियन खाना ग्वांगझाऊ सिटी में, शेंजन सिटी में, ईरू सिटी में इंडियन खाना और इंडियन रेस्टोरेंट्स बड़े इजीली अवेलेबल हैं, जिसके अंदर 60 से 70 RMB 600 से 700 रुपए के अंदर रात को आपको भरपूर भरपेट खाना मिलता है, जितना मर्जी आप खा सकते हो। 6 सब्जियों के साथ खाना मिलता है आपको। तो वेज रेस्टोरेंट्स हैं, दोज पीपल हु आर वेजिटेरियन, वहां पर वेज रेस्टोरेंट्स हुए हैं, तो उनको कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खाना वाना सब चीज मिलती है। तो हम बहुत ही जल्द चाइना का डेलीगेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, बिकॉज वी वांट टू एक्सप्लोर मोर बिजनेस। देयर आर मेनी पीपल विद इन फेडरेशन एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, राइट। तो इन जनरली सर, जो लोग नया इस बिजनेस में शुरुआत करते हैं, जो लोगों को अड़चने आती है, जो हम देखते हैं कि कस्टमर वेरिफिकेशन है, बाकी चीजें, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस इसमें दिखते हैं कि जो लोगों को नहीं आएंगे अगर वो हमारे साथ फेडरेशन के साथ काम करेंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारे साथ लोग जुड़ते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम इसलिए फेस नहीं आएगी क्योंकि हम 12-13 साल से वहां आ जा रहे हैं, वहां बेस्ड है। ठीक है, हमें हर चीज का, हर आइटम का वहां पे पता है कि कौन से आइटम किस फैक्ट्री का प्राइस ठीक है, किस फैक्ट्री का प्राइस ठीक नहीं है, या किससे डील करना है, किससे नहीं करना। और उसके जाने के बाद वहां से आपकी लोडिंग की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपको वहां पे कोई हमसे कैश की आवश्यकता पड़ जाती है, कोई आपको टैक्सी में सहायता चाहिए, हर चीज से हम वहां पे आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप बिंदास होके वहां पे जाइए और अपना बिजनेस एक्सप्लोर कीजिए।
हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, बहुत खूबसूरत देश है। जी, दैट्स ओके। तो चाइना के साथ आपने और भी कुछ कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट होता है, लेट्स से अभी चाइना से इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं, बट लेट्स से चाइना से दुबई में भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, यूरोप में भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, क्या इंडियन प्ले अ रोल देयर आल्सो? जो लोग हमारे एसोसिएट है, अभी फेडरेशन का ट्रेनिंग जो होता है ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो काफी लोग इंडिया के, भारत के बाहर से भी कर रहे हैं। दुबई से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, नाइजीरिया से कर रहे हैं, लंदन से कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। तो ये लोग मतलब इंडियन जो वहाँ पे बेस्ट है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग कि भाई क्या बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कुछ लेन देन हो सकती है, तो दे आर वेरी कीन ऑन दिस। तो उनके लिए भी क्या चाइना से या इंडिया से तो हम लोग है यहाँ पे, लेकिन चाइना से सोर्सिंग करके वहाँ पे ऑलरेडी सारी कंट्री, सारे वर्ल्ड को वहां से माल जा ही रहा है, यही सब चीजें। बट इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं, उनकी कंट्रीज में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो इजीली हर तरीके के ब्रांड्स, हर तरीके की चीजें आराम से अपनी कंट्री, हर कंट्री का हर आदमी वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंट्री, और वो वहां पर मतलब एज ए वहां पे अपनी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है। तो जो वहां के लोग आते हैं तो वो फिर उसी को प्रेफरेंस करते हैं। अगर कोई फ्रांसिस है तो वो फ्रांस का बंदा उसको करेगा कि ये मेरे लिए काम करे। कोई अगर सूडान से है तो सूडान का व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं इनके साथ काम करूं। तो सेम थिंग इज जैसा। और बाकी इंडियंस के पास भी वहां पे जो पहले जाके वहां रहे उनके पास काफी है क्लाइंट्स वगैरह, इंडिया के बाहर के क्लाइंट्स उन्होंने बना रखे हैं। अब जो हमने कंपनी की बात की, तो काफी लोग चाहते होंगे कि भाई वहाँ पे ज्यादा ट्रेड हो या बड़ा बिजनेस हो, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? इज इट अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट अ कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी इन हांगकांग और चाइना, एंड व्हाट आर द आई मीन, देखिए यदि उनका मास ऑफ स्केल बहुत बड़ा होने वाला है और उनके पास आगे अपने पास बहुत क्लाइंट्स हैं तो उनको कंपनी करनी चाहिए। अदरवाइज वहां पे हमारे जैसे जो लोग कंपनियां बना के ऑलरेडी बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से अगर उनके साथ एसोसिएट करे, स्टार्टिंग में साल 2 साल 3 साल काम करे और उनका अगर सब सही रहता है तो आई थिंक हमारे जैसे एजेंट के साथ ही वहां पे वो काम कर सकते हैं। अब काफी लोग ये जो सोर्सेस है, कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो अलीबाबा पे जाते हैं, तो वहां पे फिर सारे मोस्टली व्हाट वी सी ट्रेडर ज्यादा होते हैं और फिर वहां से कोटेशंस आता है, अलीबाबा उनका गारंटी भी लेता है ना, मेंबरशिप भी होता है, उनका एश्योरेंस भी होता है। तो हाउ डू यू कंपेयर दिस डायरेक्ट सर्विस या अलीबाबा का सर्विस? तो क्या बेनिफिट है हमारे साथ काम करने में? देखिए यदि कोई पुराना व्यक्ति है वहां पे, पुरानी कंपनी है, तो ऑलरेडी उसके पास वो अब तक इतने कंटेनर कर चुका है कि उसके पास सारी फैक्ट्रियों का डाटा है। लेकिन अब जो नया बंदा होगा, नया व्यक्ति होगा जिसको कुछ नहीं पता होगा, वो अलीबाबा के थ्रू जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां चाइना जाने के बाद अगर वो उसको वो फैक्ट्री उसके मन मुताबिक रेट देती है तो इट्स हिज ऑप्शन ना कि वो कैसे किसके साथ क्या काम करना चाहता है। अगर उसको डायरेक्ट स्टार्टिंग में कोई फैक्ट्री मिल जाती है वहां पे और उसका काम बन जाता है तो ये वाइस वर्सा है, कुछ भी दोनों चीजों की संभावना है इसके। ओके, अब जो लोग ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम? जैसे आपने कहा पहले कि कोई उसमें लिमिट नहीं है, बट कम से कम लेट्स से क्या 2-3 लाख रुपए में भी ये बिजनेस शुरू हो सकता है? बिल्कुल आसानी से हो सकता है। डिपेंड ऑन कि सामने वाला क्या करना चाहता है। वो सोचे कि मैं 2-3 लाख रुपए में सिर्फ कोई ऐसी हैवी आइटम है कि ब्लैंकेट ले आऊं, तो 2-3 लाख रुपए के ब्लैंकेट तो कुछ आएंगे ही नहीं। कोई स्मॉल आइटम्स हो गई जैसे टॉय, स्टेशनरी और मोबाइल एसेसरी, कार एसेसरी, तो डिपेंड्स कि पता चले वो गया तो 3 लाख रुपए के ऊपर 50,000 रुपए का वो खर्चा करके आया है, तो जितना उसने कमाना था उतना तो वो पहले ही खर्च करा है। तो इतना है कि एटलीस्ट कम से कम उसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हो। अगर बिल्कुल ही छोटे में काम करना है तो फिर तो वो यहाँ बैठ के भी मंगवा सकता है और सैंपल से अपना काम करवा सकता है यहाँ से सैंपल। तो हम लोग पहले सैंपल भी मंगवा सकते हैं, बिल्कुल श्योर, नो प्रॉब्लम, देन वन दे गेट एश्योरेंस, कंसाइनमेंट मंगाते हैं। नो प्रॉब्लम। ये जो पेमेंट टर्म्स होती है कि क्या होनी चाहिए, मतलब ये किसी को बिजनेस करना है तो जैसे कि हमारे साथ जो जुड़ जाते हैं तो उनको कस्टमर्स को पैसे कब देने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, फ्रेट, लॉजिस्टिक, ये सब कैसे होता है? तो आपको मैंने बताया ना जैसे 30-70 की रेशियो रहती है, यू सी। तो उसके अंदर जैसे अब आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, अब इसमें डिपेंड करता है कि वो कैसे मंगवाना चाहता है, बाय सी मंगवाना चाहता है या बाय एयर मंगवाना चाहता है। बाय एयर के अंदर मैक्सिमम 7 to 10 डेज के अंदर शिपमेंट आ जाती है, ठीक है। और बाय सी के अंदर इट टेक्स 30 to 40 डेज, यू नो। तो अब उसके अंदर लेकिन जो फ्रेट है उसका बिल्कुल आधे से भी आधा पड़ जाता है कई बार प्रोडक्ट के ऊपर, और जितना आपका फ्रेट कम पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट पता चले कि 30 से 40 दिन बाद आया और तब तक और 4 जनों का उतर गया माल यहाँ पे, तो वो आइटम ही खराब हो गई, मिट्टी हो गई, तो फिर तो आप उसमें किसी को दोष नहीं दे सकते।
सर ये हम तो अभी समझ गए कि इनमें सब प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल है, तो फिर भी लोगों को थोड़ा डर लगता है, इंडियंस को थोड़ा सा रिस्क लगता है। रिस्क दो तीन टाइप का है, एक तो लेट्स से पेमेंट्स का, कस्टमर मतलब जो सप्लायर है वो जेन्युइन है कि नहीं, प्रोडक्ट जो क्वालिटी का चाहिए वैसा आता है कि नहीं, और तीसरा बड़ा रिस्क रहता है कि भाई इंडिया में इंपोर्ट जब करते हैं तो अपन को पता है कि कस्टम डिपार्टमेंट में काफी वहाँ पे करना पड़ता है, मतलब अड़चन आती है, ड्यूटी है, ज्यादा हो गया, कुछ रोक लिया कंसाइनमेंट, है ना, काफी फोन आते हैं हमें कभी कभी कि भाई सर ये कंसाइनमेंट रुक गया तो आप देखेंगे क्या, और हम लोग उनको हेल्प करते हैं। तो ये चैलेंजेस लोगों को आते हैं क्या इस टाइप ये चैलेंजेस आते हैं क्योंकि कस्टम के अंदर हर चीज की ड्यूटी फिक्स है। इंडियन कस्टम सेज कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लाना है, आप उसकी अंडर इनवॉइसिंग जितनी तय है उतनी करो, अंडर बिलिंग मत करो कभी। ओके, एक तय तक एक आइटम क्लियरिंग हो रही है उसको उसी रेट के ऊपर कराने की हमेशा कोशिश रखें। और कभी भी मिस डिक्लेरेशन के चाल में ना जाएं। यदि आपको कोई कहता है कि हाँ जी आप लेके तो लोहे की चम्मच जा रहे हो और बीच में है सोने की चम्मच और आपने लिखी है लोहे की, तो आप फंसोगे ही फंसोगे। चाहे आप 10 कंसाइनमेंट आपकी निकल जाएंगी, 11वीं में आप फंसोगे। आप ईमानदारी से अपना कंटेनर लाओ, उसकी ड्यूटी जितनी बनती है भारत सरकार की बनती है वो उनको हाथ जोड़ के दो, अपना कंटेनर लाओ, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। दुनिया भर से इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। आप जिस भी चीज को करना चाहते हो अपनी उसके ऊपर मास्टरी रखो अपनी सेल्स पे, तभी इस बिजनेस में कूदो। पेपर चैलेंजेस हैं, डे बाय डे इंडियन गवर्नमेंट सख्त हो रही है, पेपर की समझ आपको होनी चाहिए, नहीं तो आपको कोई अच्छी सा CHA, कोई ऐसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी हमारी संस्था का आपको कोई ना कोई ऐसी सेवा लेते रहना चाहिए जिनको कि हर चीज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीज की नॉलेज हो। और हर चीज के लिए गवर्नमेंट हर साल किताबें इशू करती है, नई बुक्स आती हैं आफ्टर बजट। अगर आप उतने सामंजस्य रखते हो, उतना आप रखते हो अपने अंदर गट फीलिंग, उन बुक्स को पढ़ के आप करवा सकते हो। तो ड्यूटी का प्रावधान तो ऑनलाइन भी है, अगर आपको किसी CHA या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है तो यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ, नो प्रॉब्लम। तो कुछ जो बड़े कंसाइनमेंट है क्या LC बेस्ड पेमेंट पे हो सकते हैं क्या? या LC पे हो सकते हैं, बिल्कुल 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो उल्टा मेरे एक अंकल हैं, उनको चाइना गवर्नमेंट के बैंकों ने 3-3 करोड़ रुपए की उनको मतलब लिमिट ऑफर करी हुई है। या आई नो दैट पीपल कि जिनको चाइना के गवर्नमेंट से 90-90 दिन की LC प्रोवाइड हो रही है कि आप इंडिया में ले जाओ, माल इंपोर्ट करो, बेचो, फिर उसके बाद 90-90 दिन बाद भी आप दे सकते हो। उतना मतलब सपोर्ट उतनी आपकी कितनी आपकी कंपनी स्ट्रांग है पेपर्स में, वैल्यूज में, कितनी आपकी बैंकिंग स्ट्रांग है, तो आप लोग ले सकते हो, LC इजीली कर सकते हो। राइट। तो आप जो नए लोग हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स है, हमें पता है कि अभी आधा इंडिया ऑलमोस्ट मतलब काफी सारे लोग नए ग्रेजुएट है, ये सब ढूंढ रहे कुछ ना कुछ बिजनेस। तो इन सबको देखते हुए, या कुछ लोग नौकरी ढूंढ रहे लेकिन नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, तो इनको आप क्या मशवरा देंगे, क्या सलाह होगी आपकी कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आए, या क्या है यहाँ पे सर? जरूर आइए, हमारी तरफ से तो मोस्ट वेलकम है। हमने कभी किसी को ना नहीं किया। इंपोर्ट के अंदर बहुत संभावना है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, मार्केट बहुत बड़ा है। आप सही तरीके से सही लोगों के चैनल से आए तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ कि देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू पंकज जी, आप यहाँ पे आए और आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, तो काफी सारे लोग हमारे तरफ देख रहे कि हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे काफी सारा इंपोर्ट का, एंड वी आर वेरी श्योर दैट वी कैन हेल्प यू टू स्टार्ट योर इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम चाइना। थैंक यू।